آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 29 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر مخلوق اپنے اپنے قاعدے اور نظام میں چل رہی ہے، تو یہ انسان خود کو اس قاعدہ قانون سے خود کو ماورا کیوں سمجھتا ہے؟ قواعد یعنی اس خاکی مشین کے افعال کے ضوابط یہ بتاتے ہیں کہ اس سے مسیحائی کا ساتھ دینا ہے، اللہ کی راہ پر چلنا ہے، مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، مساوات اور عدل سے کام لینا ہے، رزق دینے والا اس ذات الہی کو ہی تسلیم کرنا ہے۔ ہاں، رزق کے لیے وسیلہ تو یہ انسان ہی بنتے ہیں، اس طرح تو یہ جانور، یہ زمین، یہ ہوا سب ہمارے وسیلے ہیں۔ زندگی، بھوک، دولت، ثروت، اولاد سب کچھ اسی نظام کے قواعد میں دستیاب ہیں۔ اس لیے کبھی تو نے اللہ والوں سے یہ سنا ہے کہ تم کافر ہو اس لیے تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا؟ اللہ کا نظام یہ نہیں کہتا اور نہ ہی تعصب کا شکار ہے۔ وہ ذات کریم سارے جہانوں کی خالق ہے اور اس نے سب کو عطا کرنا ہے۔ ہاں، جو شیطان کی تعلیمات پر چلتے ہیں وہ اللہ کی عطا اور امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ طاہری ولی سرکار کی گفتگو نے میرے دل و دماغ میں اٹھنے والے سوالوں کا رخ موڑ دیا اور مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ کہنے لگے، اگر تو کچھ پانا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا، ہجرت کرنا چھوڑ دے، صرف دیکھتا جا، ایک روز کیمیا گر بن جائے گا۔ اپنی آنکھیں بند کر لے مگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا، لیکن اس کے دوستوں کی تعظیم سے بھی غافل نہ رہنا۔ میں جب واپس حویلی آنے کے لیے اٹھا تو وہ کہنے لگے، ریاض شاہ حویلی واپس آ چکا ہے، اب تو معاملات کو احسن طریقے سے چلنے دو گے، تمہارے بابا جی بھی آئیں گے، تم کوئی ہجرت نہ کرنا، صرف دیکھتے جاؤ، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ میں واپس حویلی پہنچا تو ریاض شاہ واقعی زلیخا کو لے کر واپس آ چکا تھا۔ زلیخا کی حالت معمول پر تھی، میں نے محسوس کیا اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت نہیں تھی۔ میں نے چاچا جی اور چاچی کو سمجھا دیا تھا اور ان سے عہد لے لیا تھا کہ فی الحال وہ ریاض شاہ کے ساتھ کسی فساد میں نہ پڑے۔ ریاض شاہ مجھ سے بڑی بے تکلفی سے ملا تھا، ایسا لگا جیسے ہمارا برسوں کا یارانہ ہے۔ میں نے زلیخا کے بارے میں اس سے کوئی گفتگو نہ کی تھی۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، میں نے نماز ادا کی اور واپس ریاض شاہ کے پاس چلا گیا۔ وہ مراقبہ کی حالت میں چادر بچھا کر بیٹھا ہوا تھا، مجھے بابا جی سرکار کی حاضری کا انتظار تھا۔ ریاض شاہ نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جی سرکار نے تجھے بلایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ تم گاؤں کے چوراہے پر چلے جاؤ، وہ تمہیں ادھر ہی ملیں گے۔ میں وہاں کیوں جاؤں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا، انہوں نے ہی بلایا ہے، کہتے ہیں شاید میاں جب تک خود مجھے لے کر حویلی نہیں آئیں گے میں حاضری نہیں دوں گا۔ ریاض شاہ کے لبوں پر عجیب سی استزائیہ مسکراہٹ تھی۔ میرے دل میں آیا کہ نہ جانے اب یہ کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن پھر مجھے ٹہلی والی سرکار کی باتیں یاد آ گئیں اور جب رات کے 11 بج رہے ہوں گے میں گاؤں کے چوراہے پر چلا گیا۔ ہر سو اندھیرے کا راج اور سناٹا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آج رات کے دھڑکتے دل کو کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہے۔ جھینگروں کا شور تھا، نہ کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چوکیدار بھی ایک بار جاگتے رہو کی صدا بلند کر کے طویل خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ سیاہ رات نے ایسی سنسانی اور لرزہ طاری کر دینے والی سرد مہر خاموشی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں راستوں کو ٹٹولتا ہوا چوراہے تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے چاہا تھا کہ لالٹین اپنے ساتھ رکھ لوں مگر ریاض شاہ نے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، رات کی سیاہی تمہارے راستے کو روشن کر دے گی۔ میں حیران تھا کہ کبھی اندھیرا بھی روشن بن سکتا ہے۔ شاید میرے اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، تم نے کبھی غور کیا ہے اندھے انسانوں کے لیے دن اور رات ایک جیسی ہے؟ تم یہ احساس قائم کر کے آج اس سیاہ رات میں اپنی اس منزل کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاؤ تو پھر تمہیں روشنی کا محتاج نہیں رہنا پڑے گا۔ میں دل سے ریاض شاہ کی کسی روحانی کرامت کا معترف نہیں رہا تھا۔ میں نے چپ کی چادر اوڑھ لی تھی۔ میں اب خاموش رہ کر ان لوگوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا عہد کر چکا تھا۔ میں ٹھوکریں کھاتا ہوا چوراہے تک پہنچ گیا۔ میرے لیے یہ اندھیرے روشنی ثابت نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی چوراہے تک پہنچنے کے بعد مجھ پر کسی کرامت کا ظہور ہوا تھا۔ چوراہے میں کھڑا ہو کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا تھا۔ مجھے اپنے سوا کسی وجود کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میری نظر تھک کر واپس اپنے مدار میں آ گئی۔ روشنی کی ایک کرن بھی آسمان کے کسی پہلو سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں ہی مجھے 10-20 منٹ گزر گئے اور پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھ جیسا بے وقوف انسان شاید ہی اس دنیا میں ہوگا جس نے آنکھیں بند کر کے اس سیاہ اور ظلمی رات میں یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے کسی نے میری نظر بندی کر کے مجھے یہاں بھیج دیا تھا بابا جی کا سواگت کرنے کے لیے، مگر بابا جی کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔
मेरा वहम भरे हुए गटर की तरह शोर के किनारों से उबलने लगा था। मैं घबरा गया और पसीने पसीने हो गया। मैं दुरूद इब्राहिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगा। इसके सिवा मेरा कोई मुहाफिज नहीं था, कोई सहारा ना था कि मैं अपने रब की तरफ मतवज्जा हो जाऊं। मैं अपना इस्ने आज़म पढ़ने लगा और फिर चंद मिनट बाद वापस हवेली की तरफ चल दिया। अभी मैं कुछ दूर ही गया होऊंगा कि मुझे गांव के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर मुझे एहसास हुआ कि आसमान से सहाय की चादर से किरणें फूटने लगी हैं। मैंने आसमान की तरफ देखा। आखिरी रातों के चांद के मुखड़े से स्याह बादलों का एक गोल पीछे हट रहा था। मुझे लगा जैसे मंजर बदल रहा था। चल दिए क्या? मुझे अपने अकब से गाजी की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। गाजी तुम? मैंने पलटकर देखा। वो सफेद लिबास में मलबूस मेरे बहुत करीब खड़ा था। उसके पास से अगर और काफूर की मिली जुली महक आ रही थी। हाँ भैया मैम, ये लो आज तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ, ये लो खा लो। उसने एक मशहूर जमाना ब्रांड की आइसक्रीम का एक बड़ा कप मुझे थमा दिया। मैं उस वक्त गाजी का रूखा रवैया भी भूल गया था जब उसने रियाज शाह की वजह से बयानगी इख्तियार की थी। मैंने आइसक्रीम पकड़ ली। ये चॉकलेट थी। गाजी यार मैं चॉकलेट नहीं खाता। वाह कोई बात नहीं, ये मुझे दे दो, मैं आपके लिए मैंगो फ्लेवर ले आता हूँ। उसने आइसक्रीम वापस ली और एक स्टिक मुंह में डालकर गायब हो गया। गाजी सुनो तो। वो जा चुका था। गाजी के जाते ही बाबा जी की आवाज सुनाई दी। मैंने इस सिम देखा, वो मेरे अकब में खड़े थे। तुमसे बहुत प्यार करता है गाजी। बाबा जी सफेद एहराम जैसा लिबास पहने हुए थे। पाँव में नीले रंग की चप्पल थी। दराज कामत, सड्ढोल दहकता हुआ बदन, चेहरे पर वही सफेद घनी दाढ़ी, मोटी मोटी आंखें, आबरू भी सफेद थे, पलकें भारी। बोले तो लहजे में ऐसा जमाल और दबदबा था जो समुद्र के सीने में धड़कती और अवाम मौजों में तलातुम बर्पा कर देता है। उन्होंने हाथ मेरे कंधे पर रखा था और मैंने अपना बाजू उनकी कमर के गिर्द हमाइल कर दिया, गोया इनसे लिपट जाना चाहता था। उस वक्त मैं सब कुछ भूल गया था। कई दिनों की कदौरतें, रंजिशें, शकूक, सब कुछ ही तो भूल गया था। इनका वजूद मेरे एहसास को यकीन में बदल रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था। बाबा जी गांव के चौराहे में मेरे पास तन्हा खड़े थे। रियाज शाह भी वहां नहीं था। एक ताकत मेरे बदन को छू रही थी। मैं बेसाख्ता सिसकियां लेने लगा। बाबा जी ने मेरे सर पर दस्ते शफकत रखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो, किस्मत वाले ही इन भेदों से भरी मंजिलों के राही होते हैं। तुम पर बहुत कुछ आश्कार हो रहा है। ये बात ऐसे ही है जैसे महीनों के भूखे इंसान को एकदम लजीज खाने दे दिए जाएं तो वो जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ता है। आंतें जो भूख से सुकड़ रही होती हैं, एक साथ इतना ज्यादा खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दोस्त, ये सलूक और तसव्वुफ की राहें भी ऐसी हैं। जिन लोगों ने कभी ऐसे हालात देखे हों, इस मखलूक के खुदा को ना देखा हो जो दुनिया में महज एक फर्जी और पुरस्कार मखलूक समझी जाती हैं, जब वो उसकी जिंदगी में शामिल होती हैं तो इसे समझना, देखना और हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर इस मखलूक का रवैया भी तो अजीब तर होता है। अब तुम अपने आप को ही देखो। कभी तुम हमें शैतान के आलाकार समझते हो और कभी बहुत बड़ा पारसा बुजुर्ग। दरअसल अभी तक रूहानी के पहाड़ की इस हमवार चोटी पर पहुंचने से पहले पथरीले कांटों और सांपों से भरी पटगंडियों पर चल रहे हो। तुम उस कोहे पेमा की तरह हो जो पहली बार पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है। वो समझता है उसकी चोटी बहुत करीब और उसे फतह करना आसान है। वो हर पगडंडी अबूर करने के बाद महसूस करता है कि अब चोटी तक पहुंचने का रास्ता हमवार होगा, मगर रास्ते के पत्थर, कांटे और जहरीले कीड़े इसकी और चोटी के दरमियान हायल हो जाते हैं। अगर तो उसके इरादे पुख्ता हो, यकीन साबित हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दम लेता हुआ, उलझता हुआ, लड़ता हुआ, सब्र और इस्तकामत के साथ सलूक की पगडंडियां चढ़ता रहता है और बिल आखिर रूहानियत की इस चोटी पर पहुंच जाता है। मैं बाबा जी की सीने के साथ लगा हुआ था। उनकी बातें उनके बदन की हरारत जैसी थी, ऐसी ठंडक और राहत अमेज आगोश उस माँ जैसी थी जो बच्चे को उसे जुदा नहीं होने देती। बाबा जी, मैं बोला तो मेरा लहजा बड़े मान से भरा हुआ था। बाबा जी, क्या पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर रूहानी खलत मिल जाती है? मेरे बच्चे, उन्होंने मुझे अपने से जुदा किया और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगे, चलो हमें हवेली ले चलो, रास्ते में ही बातें होंगी। मैंने एक बाजू इनकी कमर के गिर्द लपेटा और इन्हें अपने साथ लेकर हवेली की तरफ चल दिया। चंद कदम चलने के बाद बाबा जी बोले, पहाड़ की वो चोटी जिसे रूहानी की चोटी समझते हैं, वो 7 आसमानों से ऊपर जलवा अफरोज शहंशाह कायनात, खालिकुल मलाइका, खालिकुल जिन्ना और खालिकुल इंसान तक पहुंच जाएंगे। उसकी कुर्बत, उसके एहसास को छू लेंगे, उसकी तजल्लियों से खीरा होंगे।
और वो बड़ी रगबत से हमारी तरफ मतवज्जा हो जाएगा। ये बुलंदियां जो बहुत सी मुसीबतें झेलने के बाद हासिल होती हैं, इनकी हर मंजिल के अपने कवायद होते हैं। तुमने देखा, पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत सी तकलीफें उठाना पड़ती हैं, लेकिन फिर उस चोटी से आगे का सफर शुरू हो जाता है। शाह रख के मकीन से सरगोशियां करने का यकीन पुख्ता होता है। उस मंजिल की अपनी राहें और पगडंडियां शुरू होती हैं। हम नीचे खड़े होकर जब देखते हैं तो पहाड़ की चोटी बादलों और आसमानों से बातें करती दिखाई देती है, लेकिन जब हम इस चोटी पर पहुंचते हैं तो एहसास होता है कि हमारी मंजिल तो अब उससे आगे है। कुछ लोग इस चोटी पर ठहर जाते हैं, वो जमीन से बुलंद हो जाते हैं। इन्हें पहाड़ों, गुलजारों और आबशारों के दरमियान बसने वाले बहुत छोटे कीड़े जैसे नजर आने लगते हैं। इनकी नजरें वसतों को मापने लगती हैं। ऐ मेरे दोस्त, मेरे हमदम, ये रूहानी दर्जात पर ठहरे बुजुर्गों में से कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ को सर करके उसकी चोटी पर ठहर जाते और दोबारा से खुद को नए सफर के लिए तैयार करने लगते हैं। बाबा जी, ये अपने रियाज शाह साहब किस मकाम पर खड़े हैं? मैं पूछे बगैर न रह सका। उसने तो अभी पहाड़ की पहली पगडंडी को अबूर किया है, अभी उसका नफ्स उसको लताड़ देता है। बाबा जी धीरे से बोले, तुमने देखा, अभी तो उसने अलूम की सीढ़ी पर कदम रखा है और उसके पास ताकतें आ गई हैं। अभी उसे बहुत सी मुशक्कतें झेलनी हैं, उसे खुद को मारना होगा। वो एक जगह ठहर गया है, उसने इस मकाम को मंजिल जान लिया है। वो अभी गुमराही के निशान पर रुक गया है, फिर कहीं वो आगे बढ़ने के काबिल होगा। मैं तुम्हें एक बात कह दूं, रूहानी अलूम की सरबुलंदी का ये आलम है कि जो भी उस पहाड़ पर कदम रखता है वो जमीन पर बसने वालों से बुलंद हो जाता है। वो अपने उस मकाम के मुताबिक हर तरह की मख्फी मखलूक से भी काम ले लेता है। ओह, मेरे सीने से सर्द आह निकली। इंसान वाकई अजीम तक मखलूक है, मगर इसे अपने उस मकाम का सही अदराक नहीं है। तुमने सही समझा। काश इंसान खुद को पहचान ले तो इसे जमीन पर चलने और फिजाओं में उड़ने के लिए किसी दूसरी शय का मोहताज न रहना पड़े। वो अपने इल्म के बलबूते पर मुसाफिरें तय कर सकता है, वक़्त को मुट्ठी में थाम सकता है, जहाँ चाहे खुद को मुतशक्किल कर सकता है। तुमने बुजुर्गों की करामात सुनी होंगी, तुमने ढेरों ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि एक इंसान जो आपको अभी मिला है, आप जहाज पर बैठकर जब किसी दूसरे मकाम पर चले जाते हैं तो वो शख्स वहाँ भी नजर आता है। इस दौरान गाजी भी आ गया, उसने मुझे आइसक्रीम दे दी। कुछ देर बाद जब हम हवेली पहुंचे तो दरवाजे पर रियाज शाह खड़ा था। उसने भी आगे बढ़कर बाबा जी को सहारा दिया और अकीदत और एहतराम के साथ मेहमान खाने में ले गया। उस रात हमने हवेली के किसी दूसरे फर्द को इस महफिल में नहीं बुलाया था। बाबा जी मुझे रूहानी इसरार और रमूज समझाते रहे, गाजी के साथ बातें होती रहीं। सहरी के करीब बाबा जी चले गए थे, मगर जाते जाते वो मुझे 2 तोहफे देकर गए, आबे जमजम और सुनहरी तारों वाली टोपी। वक़्त रुखसत उन्होंने गुलाम मोहम्मद को भी बुला लिया था। खुशुल हान नात को जिन था, हिफ्ज़े कुरान था, नहायत दिलसोज अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता और जज्बो कैफ से तिलावत आयात करता तो माहौल बन जाता था। उससे अगली शाम भी मेरे लिए बड़ी मसरूफ और अजीब तर थी। शाम को ही शाह साहब ने मुझे कह दिया था कि आज वो मुझे अपने साथ संबड़ियाल लेकर जाएंगे। ये कस्बा वजीर आबाद सियालकोट रोड पर है। नहर के किनारे इस आबाद कस्बे को चंद माह पहले ही तहसील का दर्जा दिया गया है। क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ सिख और हिंदू रहते थे। यहाँ सियालकोट का ड्राई पोर्ट भी है जो नहर के साथ है। शाह साहब ने बताया कि इन्हें एक सितम गजीदा घराने की मदद करनी है। इस घर में आने वाली हर बहू पर जिन आशिक हो जाता था, जिससे घबराकर उस घर के नौजवान कस्बा छोड़ जाते थे। अब वहाँ सिर्फ छोटा बेटा, एक बेटी, इनकी वालदा और वालिद रह रहे थे। छोटी बहू को भी दौरे पड़ते थे, लेकिन इनका बेटा इमरान अपने अकीदे पर सख्ती से कारबंद था। वो कहता था कि हमारे घर में जिन भूत का साया नहीं है, ये सिर्फ वहम परस्ती है। घर का सरबराह सन्यारा था, पैसे की कमी नहीं थी, खुशहाली थी। हम उनके घर मगरिब के वक्त ही पहुंच गए थे। पुरशिकवा इमारत थी, लेकिन 1 सदी पुरानी। घर में अंजीर का 25 साल पुराना दरख्त था। उसके सामने लॉन था जिसमें घास और पौधे थे। लॉन से आगे रिहायशी कमरे थे। घर में एक शेफर्ड नस्ल का कुत्ता था, बहुत खौफनाक शक्ल थी उसकी। सुनियारे का नाम भट्टी फर्ज कर लेते हैं, असल नाम लिखने की हमें इजाजत नहीं है। सुनियारे भट्टी ने हमारे लिए बहुत ही पुरतकल्लुफ खाना तैयार किया था। हेड मराला की ताज़ा मछली पकवाई थी। इशा पढ़ने तक हम घर वालों के साथ बातचीत करते रहे। सुनियारा भट्टी बार बार शाह साहब और मुझसे बाबा जी के मुतालिक बातें करता रहा। वो बड़ा मुश्ताक था।
उसे वहम भी था कि कहीं इसे बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। इशा के बाद शाह साहब ने घर के सभी अफराद को बड़े कमरे में बुला लिया और दरवाजा बंद करके लाइट बुझा दी। उन्होंने महफिल के आदाब से भी आगाह कर दिया था। सबने दुरूद इब्राहिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू कर दिया। शाह साहब स्विच बोर्ड के पास खड़े हो गए थे। वो ज़ेरे लब गैर मानूस जुबान में कुछ पढ़ने लगे थे और साथ साथ बिजली के बल्ब को ऑन ऑफ करते रहे। चंद मिनट बाद वो वहां से हट गए। कमरा अंधेरे में डूब गया और साथ ही अस्सलामु अलैकुम की भारी भरकम आवाज आई। बाबा जी अपनी असल शक्ल में आ गए थे। ये बिजली का बार बार बुझाना और वज़ाइफ पढ़कर इन्हें तलब करना दरअसल इन्हें असली जिन्नाती शक्ल में ही मुतशक्ल करने का बाइस था। घर के सभी अफराद ने फौरन वालेकुम अस्सलाम कहकर इनका इस्तकबाल किया। बाबा जी की आमद से सुनहरे भट्टी की सांसें जोर से तेज हो गई थी। बाबा जी की आमद के साथ ही शीफट कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया था। इसे तो दफा करना था रियाज शाह। बाबा जी की गंभीर आवाज सुनाई दी। ओह, मुझे याद नहीं आया। रियाज शाह जल्दी से बोले। इमरान, उन्होंने सुनहरे भट्टी के बेटे को मुखातिब किया। कुत्ते को किसी दूसरे घर में छोड़ आओ। इमरान कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि कुत्ता दर्दनाक आवाज में चीखने लगा। ठहरो, अब बाहर ना जाना। गाजी की चहकती आवाज सुनाई दी। मैंने उसे सुला दिया है। सुला दिया? मार दिया क्या? मेरा कुत्ता तो बहुत कीमती था। इमरान कहने लगा। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं था वो। गाजी उसके पास पहुंचकर बोला और फिर उसने इमरान को चुटकी काटी तो इमरान बिलबिलाने लगा। कौन हो तुम? ये क्या करते हो? पीछे हटो ना। वो बुरी तरह घबरा गया था। गाजी, इधर आराम से बैठो। बाबा जी ने इसे डांट कर कहा तो वो मेरे पास आ गया और मेरे कान में सरगोशी करके बोला। भैया, यहाँ तो पूरा कबीला आबाद है। सारे हिंदू हैं। बरसों से इनकी पगी यहाँ आबाद है। इनमें चुड़ैले भी हैं। चुड़ैले जिन्नात और शयातीन के दरमियान में एक बिगड़ी हुई शैतानी मखलूक है। जैसे घोड़े और गधे के माबैन एक मखलूक खच्चर कहलाती है, इसी तरह जिन्नात और भूतों के दरमियान मोनोसन नस्ल मखलूक चुड़ैल कहलाती है। ये काफिर होती हैं। इनका काम इंसानों को गुमराह करना और इन्हें गंदगी पर माइल रखना होता है। काम बहुत भारी है। बाबा जी ने सबका हाल अहवाल जानने के बाद कहा और फिर शाह साहब के साथ उसी गैर मानूस जुबान में बोलने लगे। बात मुकम्मल करने के बाद शाह साहब मेरे पास आए और एक कुंद सी छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहा, होशियार रहना, आंखें ना खोलना। बाबा जी चुड़ैलों को पकड़ने लगे हैं। अभी उन्होंने ये कहा ही था कि कमरे में जैसे बोलचाल सा आ गया था। एक औरत की दहशतनाक आवाजें आने लगी। बारीक और बहुत ही तेज आवाज थी ये। ओ मैं मर गई, हाय मैं मर गई। वो रोते रोते चिल्लाने लगी। बाबा इसको बाज करो, मुझे चुटकियां काट रहा है। मैंने जानबूझकर आंखें खोल दी थी। अंधेरे मेरे लिए रोशनी बन गए थे और रात की स्याही में छुपे वजूद मुझ पर बेनकाब हो गए थे। चुड़ैल एक बहुत बड़ी परछाई की तरह पूरे कमरे में भाग रही थी। घर के सभी अफराद के पीछे सफेद लिबादा ओढ़े जिन्नात खड़े थे जो परछाई नुमा चुड़ैलों से इन्हें महफूज किए हुए थे। गाजी उसके पीछे भागकर उसे चुटकियां काट रहा था और फिर उसने इसे पकड़कर दरवाजे के पास खड़ा कर दिया था। आप जानते हैं मेरी पग्गी बड़ी ताकत वाली है। अगर तुमने इन इंसानों की वजह से तंग किया तो हम इस घर को जलाकर राख कर देंगे। बकवास बंद करती है कि नहीं? गाजी ने एक जोरदार थपेड़ा उसके मुंह पर मारा तो वह धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। जो सरकार ने पूछा है इसका जवाब दो। हम 70 साल से यहाँ आबाद हैं। इंजीर के पौधे पर हमारी पूरी पग्गी यानी खानदान आबाद है।